They say nursing is a work of art, but as a newbie, it's also a test of resilience, patience, and finding your voice in the chaos of care. So, with this beautiful quote, let's start with the today's video, which will be revolving around the newbie nurses. Yes, you heard me right. Today, I'm going to talk about those people who are going to have a 360-degree transition soon in their life from a student to a clinical registered nurse. Soon, you are going to handle patients independently, and there are the certain things which are going to change in your life, and let's just talk about it. And the reason behind making this video is very very obvious, because what I have seen कि लोगों ने हर तरह का वीडियो बनाया है कि there is a road map or roadway to clear NORCET, or ways to clear NORCET in 6 months, in 3 months, in 2 months, what you are supposed to read, what you are supposed to do, the timetable, read with me, live sessions, what not. But no one is talking about उसके बाद क्या. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट उसके बाद क्या. So the first thing which you are going to face as a new recruit is the anxiety and feeling of loneliness. So it's basically like the first day of your school when you're feeling anxious, you just wanted to cry, you just wanted to run, but you cannot. Of course, you are an adult. So everyone is aware about their responsibilities and roles, and you are just trying to remember where the bathroom is. Seriously, एक नए वर्क कल्चर में सबके नाम याद रखना, रेगुलर सामान कहाँ है वो याद रखना, इमरजेंसी मेडिकेशन कहाँ है याद रखना, गुड लक विद दैट. आपको हॉस्पिटल के जो होता है ना, एक वियर्ड एंड स्पोकन रूल होते हैं, ठीक है, जो समझने में ना कुछ टाइम लगता है. सो ऐसा है कि रियलिटी ये है कि यू आर द जूनियर मोस्ट, एंड यू आर लेस एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट फ्लोर. सबसे छोटे हैं, सबसे लेस एक्सपीरियंस्ड हैं. और इट्स नॉट लाइक दोज क्लिनिकल ड्यूटीज विच यू यूज टू हैव ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ, कि अपने फ्रेंड को बोल दिया कि हाँ मेरा ये पेशेंट का कुछ कर लेना, एंड काइंड ऑफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वंस लाइफ, बट नाउ यू आर. So you have to keep this thing in mind कि everyone feel anxious during this starting phase of their journey as a new recruit. और फीलिंग ऑफ लोनलीनेस भी आएगी बिकॉज यू डोंट नो एनी वन देयर. तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड भी सेम इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो जाए. तो सेम इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट होने के बाद सेम डिपार्टमेंट में आए, दैट इज ऑल्सो अ रेयर साइट. अगर फिर भी ऐसा हो गया तो तुम्हारा ड्यूटी तुम्हें आज पता है, मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट. तो इफ यू विल बी इन द मॉर्निंग, दैट अदर पर्सन विल बी इन द इवनिंग. ऐसा ही होगा, तुम्हें बहुत रेयरली साथ में काम करने को मिलेगा. तो of course you'll be feeling that anxiety, feeling of loneliness, वो सब आएगी. But the main thing you need to remember is don't let it get to you, क्योंकि ये सबके साथ होता है, and this will pass on. What you need to understand is you are here to learn new things. नई चीजें सीखनी है, कैसे पेशेंट देखते हैं वो सीखना है, अपना काम अच्छे से करना है. एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. जब भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप अपनी सीनियर से हेल्प मांग सकते हैं, वो मदद करेंगे आपकी. ठीक है, बट एक चीज के लिए रेडी रहो कि सब अपना काम करके आराम से बातें करते हुए मिलेंगे तुम्हें ड्यूटी रूम में, और तुम भाग रहे होगे यहाँ से वहां, काम कर रहे होंगे. बिकॉज इनिशियली हमारा इतना काम करने की स्पीड नहीं होती. ठीक है, हमें और सबसे ऐसा होगा कि सब लोग बैठे होंगे और तुम बेचारे काम कर रहे होंगे. बट that is how things are going to get worked later on, right? jaldi aisa hoga ki you'll be stepping all those hospital corridors like your own space. So don't let that anxiety and feeling of loneliness get to you. So another problem is the being tricked at the workplace. This is very common thing which is happening at the workplace, and people are not openly talking about it, because if they'll tell you the reality कि ऐसा होता है, तो that will be problematic for them at the workplace. What you'll see on the social media, on the YouTube reels and all, a night duty as a nursing officer in AIMS, or you'll see many videos life of a nursing officer, है ना. तो they are trying to glamorize the whole scenario, what
आई थिंक बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, बट रियलिटी में इतना भी स्मूदर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आपको वहां पे सीनियर्स ट्रिक कर सकते हैं, not all, I'm again repeating, not all, but some seniors will try to trick you, and don't let them. They'll try to take advantage of you, and you should not be letting them take advantage of you. अब उनका ऐसा होगा कि वो आपको कॉन्स्टेंटली अपने से शिफ्ट चेंज करने को बोलेंगे। दे ऑलवेज हैव दैट सैड स्टोरी विद देम, मेरे बेटे को कुछ हो गया, मेरे इसको कुछ हो गया, एंड दे ट्राई टू यू नो impose that sadness on you कि तुम्हें भी, हाँ तुम्हें लगेगा being a eager beaver, and you will just say yes कि हाँ ठीक है मैं अपनी ड्यूटी चेंज कर लेता हूँ। और इसका मेन रीजन ये भी होगा बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बिल्ड द अलायंसेस, न्यू अलायंसेस, यू आर न्यू ओवर देयर, यू डोंट नो एनीबडी, तुम्हें लगेगा कि ऐसे करके मैं एक नया फ्रेंड बना लूंगा, बट लेट मी टेल यू ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बेवकूफ़ी बन रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। तो it's good to be a team player, but not at the expense of your own well-being. It's okay to say no sometimes, because अगर तुम्हारे घर फैमिली से कोई आ रहा है, if you have your personal work or something sort, if you're not feeling good or well, if you really really need that day off, you have been working in a row for a week or something, ठीक है, तो तुम्हें भी रेस्ट चाहिए ना। तो just try to keep this thing in mind that I am also important, my family is also important। तो अगर कोई भी ऐसे बोल रहा है आके, तो हमेशा हाँ करने की जरूरत नहीं है। इसमें बेटर होगा go and visit the nursing cell and try to talk to the clerical staff directly to know about their your leaves basically, कि आपको कैसी कितना ईएल मिलता है। कई बार वो आपको बोलेंगे कि एक 6 महीने तक, 1 साल तक यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक अर्न लीव, और आपको बताएंगे ही नहीं कि कितने मेडिकल लीव्स होती हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू सच थिंग, बट वो ऐसा करते हैं कि आपको मेडिकल लीव्स नहीं बताएंगे, कभी भी सीएल लगा देंगे। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल लीव? अगर आप कभी भी कैजुअल लीव लगा दे रहे हैं तो then they just try to do this with you, but at that time you have to stand up for yourself, because remember वहां आप किसी की चापलूसी करने नहीं गए हैं, यू आर देयर टू लर्न, ग्रो एंड अर्न। और आप अपने बलबूते पे वहां तक पहुंचे हैं, तो यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। चापलूसी करने से कुछ नहीं मिलने वाला लॉन्ग रन में। और जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, आई केम अक्रॉस सर्टन थिंग्स एंड दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, तो लेट मी शेयर दैट विद यू ऑल्सो। Like this article, which is stating that 30% of the new nurses leave the profession after 1 year. Well, this is so surprising कि 30% तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है, और इतने 30% आर लीविंग because there might be some problematic situation happening back there at their workplace. And there was some articles which were saying, should nurses eat their young? So what I'm seeing is कि people are talking about this abusive or this behavior, this typical irritating behavior in the West, and this is the high time we should also address it, because it is kind of very exhausting and torturing mentally and physically for the person who is newly recruited to that area. So this is something you have to keep in mind. The next one is the bye bye for festivals for 1 year. Yes. So it's sad but true. Being a new recruit means saying bye bye to all your festivals at least for a year. Yes, you heard me right. दिवाली हो, होली हो, राखी हो, आप सारे फेस्टिवल्स को ड्यूटी पे ही बिताने वाले हो। अब guess what? Who will be the super happy to take these festival holidays while you will cover for them? Of course, seniors. So ऐसा तो होने वाला है तुम्हारे साथ, बट ये ना कुछ टाइम तक रहेगा, जब तक तुम्हारे जूनियर्स नहीं आ जाते। तो दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर, वी कैन से। एंड ऑल यू कैन डू इज लुक एट द ब्राइटर साइड। सी, you have worked really hard for this to be in the place where you are right now. So you have to remember one thing, that there are so many people standing, like thousands of other people are dreaming to be at your place. तो एंजॉय करो ना यार। अगर 1-2 साल के लिए नहीं भी छुट्टी मिल रही है, तुम्हें काम करना पड़ रहा है क्योंकि तुम जूनियर है, तो इसमें कोई, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स भी कभी जूनियर थे, उन्होंने भी कभी किया है। तो लेट देम एंजॉय।
1-2 साल के बाद तुम्हारा भी कोई जूनियर आ जाएगा, तो तुम्हें भी थोड़ा वो मिलेगा, और उसके बाद तुम भी यू कैन ऑल्सो स्पीक फॉर योर सेल्फ कि लास्ट ईयर मैंने ड्यूटी किया था, तो आई डिजर्व टू हैव अ डे ऑफ ऑन द फेस्टिवल टाइम। तो मैं तो यही बोलूंगी कि इस चीज को, ये होगा तुम्हारे साथ, तो इस चीज को इतना माइंड नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, फोकस ऑन योर फैमिली, treat yourself, your family with something sweet, lovely, and memorable, and soon it will be change, and newbie will come to replace you, of course. So next we have is the patient assignment. तो मैं ये बोलूँगी कि get ready for this, guys, because as a junior nurse we can say that you are a magnet for most sick patients. ICU, general ward, you just name it, आपको सबसे busiest area में post किया जाएगा, and you will probably have more number of patients than your seniors, and that is one of the unspoken rule which I was talking about in the beginning. हाँ, ये गलत लग सकता है, but that's how it works in the बिगनिंग, एंड ऐसे जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है, जस्ट इमेजिन वी हैव अ स्विमर who been swimming since 1 to 2 months, and you are telling that person to go and compete at the state level, तो मान सकते हैं कि ये सब आपके लिए काफ़ी टायरिंग होगा, क्योंकि उस टाइम पे लोग मैनेजमेंट का काम भी सीख रहे होते हैं। लाइक यू आर लर्निंग हाउ टू हैंडल द सेंसेस, ठीक है, हाउ टू इंडेंट द मेडिकेशन, एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर वर्क एरिया सिनेरियो। अब वर्क एरिया सिनेरियो से मेरा मतलब है कि हर जगह के कुछ अपने रूल्स होते हैं जो ज्वाइन करने पे यू विल गॉट टू नो। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। तो जैसे मेरे एरिया में जो सबसे जूनियर होता था, उसका काम था टू टेक केयर ऑफ स्टेराइल सेट्स, लाइक वी हैव ड्रेसिंग सेट, कैथेटराइजेशन सेट, सूचर सेट, एंड ये सब कुछ का रिकॉर्ड वगैरह भी रखना होता था कि कितने सेट CSST में गए, कितने तुमने रिसीव किए, तुम्हारे पास क्या है, कहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ। और वन थिंग विच एक्स्ट्रा वी नीडेड टू डू वाज मेंटेनिंग द record of the morphine injection. We know that why we do that, but ये भी सबसे जूनियर बंदा ही काम कर रहा होता था कि अगर तुम्हारे पेशेंट को लग रहा है या किसी को भी वार्ड में मॉर्फिन इंजेक्शन लग रहा है, तो यू हैव टू मेंशन द नेम, CR नंबर, बेड नंबर, अलोंग विद दैट द डोसेज, और कैसे फ्रीक्वेंसी क्या चल रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड तुम्हें मेंटेन, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। चलो ये तो कर लिया पेशेंट के साथ साथ, एक तो सबसे ज्यादा सिक पेशेंट्स तुम्हें मिलेंगे उस एरिया के, ये फालतू का काम भी तुम्हें ही मिलेगा। और इसके अलावा जो मुझे सबसे वर्स्ट लगता था वो ये था, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, पेशेंट का स्क्रीन हो गया, एंड ओटी में जाने वाले जो गाउन पजामा, ऐसे पेशेंट, आई यूज टू वर्क इन द सर्जरी यूनिट, तो वहाँ से पेशेंट शिफ्ट होता था ओटी में, तो हमारे वार्ड से वो गाउन पजामा पहन के जाता था, तो वी हैव टू रिसीव इट बैक, तो उसके पीछे भी भाई इतना इशू होता था ना। कभी कभी मुझे हंसी भी आती थी कि हाँ वी आर काइंड ऑफ कॉलिंग अदर डिपार्टमेंट फॉर रिटर्निंग us our gown and pajama and sometimes you are busy working with the patients, तो क्या होता है कि the other patient, someone else's patient got sick and he has to be shifted to OT, or we can say some ICUs, and patient was shifted with the oxygen cylinder, just say, and the hospital attendant who shifted the patient somehow forgot to bring the oxygen cylinder back. So in this situation we know that that guy will be answerable, but at the end of the day आपके उसमें अंडर आता है, या आपको इसका पूरा हिसाब किताब रखना है, तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। स्टार्टिंग में बोलूंगी कि ऐसा होगा कि अ, तुम इतना मेस्ड अप हो सकते हो कि तुम्हारे रोने निकल जाएंगे, बट बात ऐसी है कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर जॉब, ये याद रखना है अपने को, ठीक है, कि ये अपना काम है, और विद टाइम यू विल लर्न हाउ टू हैंडल इट। मैं ये नहीं बोलूंगी काम कम होगा, काम कम नहीं होता है, काम तो उतना ही रहता है, और इवन ऐसा हो सकता है इन दी वर्स्ट सिनेरियोज, जब शॉर्टेज हो जाती है स्टाफ की, तो मेनली व्हाट आई हैव सीन कि काम बढ़ जाता है, बट ऐसा है कि यू विल लर्न हाउ टू हैंडल इट। सो टेक वन स्टेप एट अ टाइम, डोंट मेस अप, डोंट वरी, इफ नीडेड डोंट शाय टू आस्क फॉर हेल्प। कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें हेल्प माँगनी चाहिए। और जैसे-जैसे टाइम निकलेगा, यू विल हैव योर जूनियर्स इन द सेम डिपार्टमेंट, देन अगेन व्हाट विल हैपन, तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएँगी वो धीरे-धीरे रिड्यूस होती जाएँगी, और तुम भी मैच्योर होंगे, तुम भी ग्रो करोगे। यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू हैंडल ऑल दीज़ सिचुएशंस।
So here comes the juicy part, the workplace politics. तो मैं एक बात बता दूं, if you're working for the first time, हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने ड्रामे और अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। जो तुम्हारे इमीडिएट सीनियर्स होंगे उनका एक ग्रुप होगा, उनसे ऊपर जो होंगे उनका एक ग्रुप होगा, एसएनओज का ग्रुप होगा, सुपरवाइजर्स, एएनएस, डीएनएस वगैरह जो होते हैं उनका अपने एक ग्रुप होंगे। तो यू विल फिगर आउट who soon enough. My advice is to stay away from this drama. सब देखना है, सुनना है, कौन कैसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। ठीक है, ये नहीं करना कि तुम हड़बड़ी में कुछ इधर की बातें उधर कर रहे हो, उधर की बातें उधर कर रहे हो। समवन इज टेलिंग यू समथिंग, ट्राई टू कीप इट टू योर सेल्फ ओनली। क्योंकि अगर तुम औरों को भी बताते फिरोगे या कुछ भी करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दे आर गोइंग टू गैंग अप एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दे नो ईच अदर सिंस सो लॉन्ग एंड यू आर द न्यूबी, डोंट फॉरगेट दैट। तो तुम्हें आइसोलेट करना बहुत आसान है। तो तुम वैसे भी एक इजी टारगेट हो, ठीक है, और वल्नरेबल हो। तो डोंट लेट अदर्स डिग्रेड यू और गिव अदर्स अ चांस टू पुट यू डाउन। तो तुम्हें क्या करना है, ड्रामा चल रहा है तो मजे लेने हैं। कोई तुम्हारे से कुछ शेयर करता है, कुछ बताता है, इधर की बात उधर, कुछ नहीं करना। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू कीप इट टू योर सेल्फ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से अपने तक बात ही नहीं रखी जाती, तो यू कैन टेल योर स्पाउस। इफ यू डोंट हैव एनी योर फ्रेंड्स हु आर नॉट वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, और टू अदर पर्सन लाइक योर फैमिली और समवन, अगर वहां पे किसी से कुछ बात नहीं करनी है। क्योंकि ये जो है ना, ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स ये ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें इसमें तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। और अगर तुम ऐसे करोगे, सिचुएशन क्रिएट करोगे, तो बाद में यू विल लेफ्ट विद नो हेल्प। तुम्हें तो स्टार्टिंग में वैसे भी चीज़ों टाइम लगता है ना, चीज़ों में ढलने के लिए, मतलब समझने के लिए कैसा क्या चल रहा है। अगर तुम ऐसे ही सभी के साथ अच्छे से नहीं बना के रखोगे तो यू विल बी लेफ्ट अलोन। और अनदर प्रॉब्लम विच यू विल फेस is that most probably you'll be assigned with more number of evening duties, because what I have seen during my time when I used to work as nursing officer, जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था, तो ऐसा था कि जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, दे अगेन वही बात सेम, दे हैव देयर फैमिली, दे हैव their responsibilities, you know, and you are bachelor, you are not living with the family, you are living on your own, तो तुम्हारे पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और you don't have any social life according to them, एंड दे डोंट केयर एक्चुअली। तो बात ऐसी है कि तुम लोगों को ही बार बार बोलेंगे इवनिंग ड्यूटी ज़्यादा कर लो। और वैसे ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को इवनिंग ड्यूटी करना पसंद है, बिकॉज what is the current scenario, what is happening around, people love to go out, have party, और वैसे रात भर सीरीज देखते रहेंगे, कुछ कुछ करते रहेंगे, 1-2 बजे सोएंगे, सुबह वैसे भी लेट ही उठेंगे। बट कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते। हर एक चीज का हिसाब होता है कि these नंबर ऑफ मॉर्निंग ड्यूटीज हैज टू बी डन, these नंबर ऑफ इवनिंग ड्यूटीज हैज टू बी डन। बट देखने में ऐसा आया है कि ज्यादा नंबर ऑफ इवनिंग ड्यूटीज जो है वो जूनियर स्टाफ ही करता है। अगर बाई चांस कोई स्टाफ शॉर्टेज हो जाती है, तो इमीडिएटली अगर कोई लीव पे चला जाता है, मान लो से मेडिकल लीव, तो अगेन यू डोंट हैव एनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू देम, तो यू विल बी कॉल्ड फर्स्ट। अगर मैं एडवाइस करूंगी कि ट्राई नॉट टू स्टे विद इन द कैंपस। हॉस्टल मिलता है, अपार्टमेंट मिलता है, मत रहो उसमें। क्योंकि वो फिर एकदम से बोलेंगे कि हाँ यू आर स्टेइंग विद इन द कैंपस ना, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू गेट इनटू द वर्क प्लेस। और इतने दूर से हम उसको बुलाएंगे तो वो ऐसे ऐसा चलता है। तो बेटर होगा कि थोड़ा बाहर लो अपना, ठीक है। और अगर पहले से तुम्हारा कोई बहुत सीरियस प्लान है, लाइक यू हैव डे ऑफ टुमारो, तो अपना फोन ही नॉट रीचेबल कर दो, दैट विल बी बेस्ट। हमेशा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अदरवाइज कई बार तो ऐसा है कि किसी को जेन्युइनली समवन इज इन नीड, तो वी शुड हेल्प। ऐसा ऐसा मीन भी नहीं बनना है, बट ऐसा है कि अगर तुम्हारा भी है तो अपना भी देखना है पहले, सीधी सी बात है। क्यों, और तुम्हें क्या फेस करने को मिल सकता है, लाइक इफ देर इज अ स्टाफ शॉर्टेज इन सम अदर डिपार्टमेंट्स एंड दे आर कॉलिंग फ्रॉम योर्स, देन इफ यू आर जूनियर यू विल बी सेंट ओवर देयर। किसी को नहीं पड़ी कि तुमने उस डिपार्टमेंट में काम किया है या नहीं किया है, तुम्हें उठा के सीधा वहां भेज देंगे, तुमसे पूछेंगे भी नहीं, है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो। और अगर कोई, let's say, I don't know, if any problem arises like pandemic, we say,
तो सबसे पहले अगर हर डिपार्टमेंट से कुछ कुछ स्टाफ जाएगा ना ऑफ कोर्स ड्यूटी करने, तो सबसे जो जूनियर होंगे उनसे ही स्टार्ट होगा, उनकी ही सबसे पहले ड्यूटी लगेगी। So these are the something these are some things which I have faced, and I'm telling you all, sorry, I'm telling you all according to my experience. The workplace politics तो होगा ही होगा. It's not limited to corporate, or we can say the government institutes. It's everywhere. I have worked in both areas. In corporate, I have worked in government settings. I have worked, so I can tell you, I can vouch for it कि workplace politics देखने को मिलेगा ही मिलेगा, and try to stay neutral as much as possible. सो नेक्स्ट इन द सीरीज वी हैव नाइट ड्यूटीज। इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली और नाइट ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करते तो बात तो अधूरी ही रह जाती। सो बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाइट ड्यूटीज आर सो टायरिंग दैट दे विल मेक यू क्वेश्चन योर लाइफ चॉइसेस। आपकी नॉर्मली 6 नाइट ड्यूटीज होंगी, जिसमें फर्स्ट हाफ में 3 और सेकंड हाफ में 3 नाइट ड्यूटीज करोगे। अगर कोई स्टाफ शॉर्टेज होती है तो 7th नाइट ड्यूटी भी हो सकती है आपकी। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि नाइट ड्यूटीज में काम कम होता होगा, इवन काम ज़्यादा हो जाता है। अगर काम तुम्हें कम भी लगे तो स्टिल नाइट ड्यूटीज आर टायरिंग बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। रात के टाइम पे हम लोग नॉर्मली सोते हैं, बट आप अभी जागे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी टायर्ड। सो देर आर सर्टन पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द नाइट ड्यूटीज। लाइक अगर आप डिनर कर सकते हैं जल्दी तो कर लें, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, जैसे मैं तो जल्दी डिनर नहीं कर पाती थी। जैसे आपको 8 बजे रिपोर्ट करना है, 8 बजे से पहले ही पहुंचना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू चेंज, यू हैव टू टेक ओवर ऑफ द पेशेंट्स, एंड फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स योर ड्यूटी हैज़ बिन स्टार्टेड। कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर आगे पीछे टाइम पे भी आ जाएं तो भी चलेगा, बट नॉर्मली आपको यही दिमाग में रखना है कि आपको 8 बजे से पहले ही पहुंचना पड़ेगा रात को नाइट ड्यूटी पे। जैसे आप पहुंचे तो इतनी जल्दी सभी लोग खाना नहीं खा पाते हैं। तो जैसे मैं भी थी, मेरा नॉर्मली जो टाइम है डिनर करने का दैट इज़ बिटवीन 10 to 11। तो मैं ऐसा करती थी कि जैसे काम दाम कर लिया 8 बजे से 8:30 से भी अगर मैंने काम शुरू किया नॉर्मली काम करके, वही ओवर वाला जो मैंने आपको बताया था वो सब काम देख लिया मैंने। उसके बाद जब मैंने पेशेंट का काम करना शुरू किया तो अब अराउंड 10:30 to 11 फ्री हो जाते हैं, तो मैं उसके बाद ही डिनर करती थी। तो डिनर हमेशा लाइट लेके जाएं, हैवी डिनर ना करें, क्योंकि हैवी डिनर करोगे और सोओगे भी नहीं तो तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्टमक अपसेट लाइक एसिडिटी, जीआरडी, वी कैन से, यू कैन फील गैसी एंड ब्लोटेड। सो बेटर होगा कि आप रात को ज़्यादा हैवी डिनर ना करो। और बात ऐसी है कि जैसे सुबह के टाइम पे भी पेशेंट्स आप देखने जाते हो तो उससे पहले यूल गेट टाइम टू फ्रेशन अप। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूंगी कि सुबह सुबह खाली पेट पेशेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इतना वीक फील होगा ना तुम्हें। तो हमेशा याद रखें कि बेसिक एमिनिटीज आर ऑलवेज प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल। आई हैव वर्कड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो मुझे वहाँ का पता है। तो जैसे फ्रिज और अवन तो होता ही है अपने पास। तो अगर ऐसा है कि तुम लोग, अगर तुम्हें दूध पीना पसंद है तो दूध पी सकते, चाय बनाना पसंद है चाय बना के पी सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हें शेक वगैरह पीना पसंद है तो पी सकते हो। अगर तुम्हें बाहर के खाने से प्रॉब्लम नहीं है तो कैंटीन भी साथ में होती है, अगर कैंटीन साथ में वहां से भी तुम कुछ ला के खा पी सकते हो, बट कुछ खा लो। जैसे मुझे पसंद नहीं था कि मैं बाहर का खाऊं एटलीस्ट नाइट ड्यूटी के टाइम पे, तो मैं ऐसा था ही शेक ले जाती थी या फिर मैं सिंपल दूध पी लेती थी सुबह। या फिर जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वी हैव वॉलनट एंड आलमंड्स, उनको सोक कर लो, है ना, और मॉर्निंग के टाइम पे यू कैन हैव इट सिंपल। ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ खा के ही जाना है पेशेंट के पास अपने पेशेंट को अटेंड करने। और इसके अलावा नाइट ड्यूटी में जैसे पहले मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस, आई नेवर ever in my whole career when I used to work as the nursing officer, I never felt unsafe within the hospital premises. मुझे हमेशा वो सेफेस्ट जोन लगता था, बट आफ्टर लिसनिंग टू दैट केस, दैट कोलकाता रेप केस, आई एम टेरिफाइड टू माई कोर। तो मैं उस बेसिस पे आपको बोलना चाहूंगी कि आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी बोल दो टर्शरी भी बोल दो, is patient and patient safety. You will be answerable
फॉर योर पेशेंट। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वी हैव टू मेक कॉल, तो उसमें आपको पर्सनली जाके कुछ भी ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है नाइट के टाइम पे। लाइक इफ़ समबडी इज़ कॉलिंग यू कि मैडम पीछे वॉशरूम में ऐसे हो गया है, पेशेंट वॉशरूम में, तो वो अगर इफ़ दे इंसिस्ट यू कि आप प्लीज़ चलो वहाँ पे देखो ज़रा क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। We have helping hands, we have hospital attendants, we have workers from the sanitation department, we have security guards, कोई ना कोई तो होगा ना वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट। तो आप उनको बोल सकते हैं, दे कैन गो एंड हैव अ लुक कि क्या हो रहा है, एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक अ कॉल। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, पानी का प्रॉब्लम है उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, बट खुद कहीं भी ऐसे किसी खोपचे में जाने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में रात के टाइम पे, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। अब लाइफ इन इंडिया इज अनप्रडिक्टेबल, हम कुछ बोल नहीं सकते, एंड बीइंग अ वुमेन it's very difficult to live comfortably, and we have been worried about ourselves since since childhood, or since we can say we start learning about this world। तो अब ऐसा है कि जो तुम्हारा वर्क प्लेस है वो भी सेफ नहीं बचा है। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अपना वहाँ पे भी ध्यान रखें, ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर योर पेशेंट, और पेशेंट के क्यूबिकल में जाके तुम कंफर्टेबली कुछ भी काम कर सकते हो। लाइक आई नेवर फेल्ट अनसेफ, बट नाउ वी हैव द केसेस इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, तो वी हैव टू बी विजिलेंट, राइट? तो इस तरीके से आपको अपना नाइट ड्यूटीज वगैरह के में ध्यान रखना है। So that's all for today's video. I hope I've made myself clear. Now you know how it's like to be a new nurse. So basically आपको क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभानी है, पेशेंट केयर अच्छे से करनी है, एंड डोंट थिंक अबाउट अदर थिंग्स, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन योर लाइफ। My intention was not to make you guys afraid, but I just wanted to make you aware how things work in the hospital setting, so that you can handle it in a very right manner। और इसके अलावा मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग लाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू बी पोलाइट एंड काइंड टू द न्यू रिक्रूट्स इन द फ्यूचर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप लेसन आज सीख लो तो आपके लिए भी अच्छा होगा, एंड फ्यूचर नर्सेज के लिए भी अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स इतना मेहनत करने के बाद भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ you have any questions you are free to ask in the comment section below। So thank you and bye bye।